Hello guys, I am Dr. Devendra Mishra, working as assistant professor in chemistry at Bidla Institute of Applied Sciences, right? Also running this tetrahedron chemistry classes channel, and here are the links available to approach me. Hello friends, welcome back to the tetrahedron chemistry classes. So guys, today I am going to take my last lecture in the reaction mechanism of coordination compounds, okay? And I have discussed lots of things in this reaction mechanism, right? My last lecture actually is on water exchange reaction and the NHN reaction, and the reason is that I am taking these two reactions at the end of the entire reaction mechanism program, right? The reason is that these reactions actually are not very clear cut, and there is no clear cut trend to follow to decide the reactivity of rate of the water exchange, right? बड़ा confusing है actually. I have actually gone through the many literatures to find the exact interpretation of the reaction rate in case of the water exchange reactions, बट एक्चुअली कुछ लगा नहीं ऐसा कि जिससे कुछ पता लग सके कि कैसे होता है. सो अल्टीमेटली कुछ ऐसा होता है केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, कुछ चीज़ें आपने याद ही करनी पड़ती हैं, इसको रटना पड़ता है बोलते हैं. तो वही चीज़ इन वाटर एक्सचेंज रिएक्शन के साथ भी है. हालांकि आई फाउंड सम ऑफ द कंसेप्ट विच मे बी यूजफुल, but again those are not very clear cut like the earlier ones. Okay, so I'm going to discuss this water exchange reaction, and definitely in CSIR net and in the gate examination the question generally they ask from this section also. Okay, so what are the water exchange reactions? So again, it is the proof of the SN1 reaction in the octahedral mechanism, okay, like your acidic hydrolysis, your basic hydrolysis, and all these things. Okay, so you can see here guys, water exchange means whenever you have this complex, right? Say you are having this particular complex, and in the center you are having the central metal ion. So if you react with the another water molecule, of course you will label that oxygen of that water molecule with the ऑक्सीजन 18 आइसोटोप, क्योंकि जब इसको करेंगे तभी मालूम चल पाएगा कि एक्सचेंज हुआ भी है या नहीं हुआ है. So when you do this reaction, so this is the rate constant, then the reaction would happen. One of the water molecule from the coordination sphere actually would be substituted by this one, और जो वाटर मॉलिक्यूल अंदर था वो बाहर निकल जाएगा, ये वाला अंदर चला जाएगा. सो दिस इज द वाटर सब्स्टिट्यूशन. तो आइसोटोपिक लेबलिंग मेथड से इसके बारे में पता किया जाता है. ओके, अब देखिए, सिंस अब जो इसमें एक बात समझ में आती है, वो सिंपल एक चीज ये समझ में आ रही है, वाटर एक्सचेंज होने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि किसी वाटर और मेटल के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है. क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, because it goes through the SN1 mechanism, right? When it goes through the SN1 mechanism, definitely it will have the 5 coordinated intermediate state or the transition state, whatever you want to say. Earlier you have seen that it may be the square pyramidal in nature, it may be the trigonal bipyramidal in nature. Okay, so when this is forming, that means five coordinate species you are having, right? That means you have to break one of these bond. तो अब देखिए, वो कोई भी कंडीशन जो इनमें से बॉन्ड को वीक करेगी वो रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देगी, और वो कोई भी कंडीशन जो रिएक्शन जो कि इस बॉन्ड को स्ट्रेंथन करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, वो रेट को स्लो कर देगी. बस इतना आपने ध्यान में रखना. एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस, you have to actually apply all the concepts of your stability of the complexes which you have learned in the coordination chemistry. मैंने आपको बताया था कि एक लेक्चर मैंने बनाया है जहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस दिया हुआ है. तो उसी पे बेस्ड एक अभी CSIR नेट 2019 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? तो वो सारे फैक्टर्स अप्लाई करेंगे तभी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली एक बॉन्ड वीक होगा तो रेट फास्ट, वो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो रेट हल्का. अब देखिए, इसमें क्या होता है कि देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड द चार्ज डेंसिटी, एंड व्हेन दिस चार्ज डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, देन the strength between this metal and the water molecule would be very very high. So what is the meaning of the charge density? Charge density means charge on the metal ion to the रेडियाई ऑफ दैट मेटल आयन. तो आप इसका रेडियाई ले लीजिए, इसका चार्ज ले लीजिए, चार्ज को रेडियाई से डिवाइड कर दीजिए तो वो चार्ज डेंसिटी आ जाएगा. तो आई हैव रिटन हियर चार्ज ऑन द मेटल डिवाइडेड बाय द रेडियाई ऑफ दैट मेटल. तो जितना ज्यादा ये चार्ज डेंसिटी होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा. अब क्यों होगा, देखिए, सिंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट चार्ज डेंसिटी? दैट मीन यू आर हैविंग द हायर चार्ज हियर. तो जब इस पे चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स दिस चार्ज इज ऑन द
मेटल, रिमेंबर दिस चार्ज वाज इन द, दिस चार्ज इज ऑन द मेटल, ओके। सो मेटल पे चार्ज ज्यादा होने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज इस पे बहुत ज्यादा होगा। वेन एवर दिस मेटल इज हैविंग द हायर पॉजिटिव चार्ज, इट कैन इजीली पोलराइज दीज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देयर वुड बी द आयन डाइपोल काइंड ऑफ द अट्रैक्शन विच एक्चुअली स्ट्रेंथन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। तो अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो बॉन्ड फिर मजबूत हो जाएगा, ठीक, और बॉन्ड मजबूत होगा तो फिर वाटर का जो एक्सचेंज रेट है वो काफी स्लो हो जाएगा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये जो चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट है, ये आपका नॉन ट्रांजिशन जो आपके मेटल्स हैं, जैसे एल्कलाइन मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ओके, वहां पे तो ये ठीक ठाक तरीके से काम करता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो फिर ये उतना बढ़िया तरीके से फॉलो करता हुआ नजर नहीं आता है, और बहुत सारे इसमें आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं कि अच्छा ये हो रहा है तो ऐसा क्यों हुआ। फिर वहां पे कंफ्यूजन वाली बात बहुत ज्यादा हो जाती है, ओके। तो वहां पे फिर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं फिलहाल। लेकिन अगर आप चार्ज डेंसिटी समझ सकते हैं तो आप यू कैन अंडरस्टैंड इन दैट मैनर। यहाँ पे देखें कि मान लीजिए ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके से आपने ले रखा है। सो एज यू सी चार्ज इज सेम ओवर देयर, प्लस 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 प्लस, ओके। लेकिन जैसे आप नीचे की तरफ जाते रहेंगे तो क्या होगा, साइज बढ़ता रहेगा। दैट मीन दिस फैक्टर द रेडिया ऑफ द मेटल इज इंक्रीजिंग। ये तो सेम है। जब ये बढ़ेगा ऑफ कोर्स तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी अगर कम होगा तो फिर बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक होगा तो फिर वाटर एक्सचेंज का रेट तेज हो जाएगा। तो इस केस में जो वाटर एक्सचेंज का रेट आएगा वो सबसे तेज आप देखिए किसके लिए होगा, सीजियम में। अगर आप सीजियम के किसी कंपाउंड में आपने करवाना है तो वहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे फास्ट इसमें होगा, फिर स्लो इसमें, फिर थोड़ा स्लो इसमें, फिर थोड़ा स्लो इसमें, और सबसे स्लो ऊपर, क्योंकि नीचे की तरफ को चार्ज डेंसिटी कम हो रहा है। कम हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी वीक हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी तो आपका वाटर एक्सचेंज भी बढ़ेगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि इसमें भी जब आप अब सेकंड उसमें जाएंगे आपके सी, इस चार्ज डेंसिटी के बेस पे एक्सपर्ट्स ने क्या किया कि मेटल्स को कैटेगराइज किया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में और डिफरेंट क्लासेस में एक्चुअली। तो इन्होंने क्या किया, 4 क्लासेस बना दी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, और उस हिसाब से इन्होंने एक्सचेंज रेट को रेट कांस्टेंट की वैल्यू के हिसाब से कर दिया। लेकिन उतना याद करना फिर संभव नहीं है और उसमें हमको जरूरत भी नहीं है। तो बस इतना याद रखेंगे कि वहां तो ये काम करता है, तो रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज इसमें तो ये नजर आता है, ओके। एंड इफ यू थिंक अनदर कंसेप्ट ऑफ द रेट ऑफ द वाटर रेट एक्सचेंज, अब देखिए मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्सेस आपके पास है, यू आर हैविंग दीज कॉम्प्लेक्सेस एंड इन ऑल दिस केसेस यू आर हैविंग the aluminium, magnesium and the sodium. Of course you can see the aluminium is in the +3 state and your magnesium in the +2 and the sodium is in the +1 state. So charge is high in that case. So when charge is very very high, of course charge density would be very very high, and when charge density would be very very high तो मेटल और इसके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा तो वाटर एक्सचेंज इसमें काफी स्लो होगा, जहां पे आपका मेटल में बहुत ज्यादा चार्ज होता है। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव की वजह से चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका M और OH2 के बीच में, तो ये रिप्लेस नहीं किया जा सकता, तो इसलिए रेट स्लो हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए स्लो है। अब इस पे 2 पॉजिटिव है तो थोड़ा ज्यादा होगा, इस पे 1 पॉजिटिव है तो थोड़ा ज्यादा होगा। बट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली वर्क्स वेल ओनली इन केस ऑफ द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो उनकी उनकी डिटेल में फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूं, ओके। एंड देन फाइनली सी इट्स अ काइंड ऑफ द लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि आप देखिए एक लीगेंड सब्स्टिट्यूट ही तो हो रहा है। तो लीगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगी तो लीगेंड सब्स्टिट्यूशन कब होगा, जबकि आपका मेटल और जो इसके बीच का बॉन्ड है काफी लेबाइल होगा। लेबाइल का मतलब है रिएक्टिव होगा। आप इनर्ट और लेबाइल मैंने बताया है कि ईजी में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आपका लेबाइल होगा, ईजी में नहीं आएंगे तो इनर्ट होगा। बट अगेन दैट कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत बढ़िया तरीके से काम करता नहीं है, तो इसमें आपने कुछ ना कुछ चीजें रटनी पड़ती है। तो वो अब क्यों रटनी पड़ती है उस बारे में देखिए थोड़ी बात करते हैं। ये जो 2 सीरीज है इस पे डायरेक्टली CSIR नेट पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। दिस यू शुड रिमेंबर, ओके। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है कॉपर के लिए जो वाटर एक्सचेंज रेट है 2 पॉजिटिव आयन के लिए ये सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए इसमें भी अगर आप देखेंगे इनके चार्जेस को, अगर आप देखेंगे या इनके चार्ज डेंसिटी को देखेंगे तो क्लियर कट पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि वो क्लियर कट पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन ये फॉलो करता हुआ नजर नहीं आता है। अब ये आपने दोनों की दोनों आप कोई निमोनिक बना लीजिए चाहे कुछ कर लीजिए, एनी हाउ यू हैव टू एक्चुअली मग आउट दीज 2 सीरीज, okay, so that you can solve the questions based on this. However there is little say explanation कि ऐसा क्यों हो रहा है। So first of all you can see here
क्यों वाटर का रेट जो आपका कॉपर के केस में है या क्रोमियम के केस में क्यों बहुत तेज ये रिएक्शन आपका रेट है? तो देखिए इसमें अगर आप देखें, सी इफ यू हैव द से कॉपर 2 पॉजिटिव, ओके, तो जो कॉपर 2 आयन है या आपका क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन है, ये आपके जॉन टेलर डिस्टोर्शन करते हैं, ओके। सो इफ दीज टू एक्चुअली द फर्स्ट टू दे अंडरगो द जॉन टेलर distortion, very high distortion very high John Taylor distortion is there in case of these two metals, okay. See, as you know, if you take your Cu2 positive, it's a D9 system and it undergoes very strong John Taylor distortion, and this is your D4, okay. So again Eg is having one electron, okay, so again very strong John Taylor distortion is there. तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने की वजह से क्या होता है, जॉन टेलर इलोंगेशन हम यहाँ पे बोलते हैं। इलोंगेशन का मतलब है कि ये बॉन्ड जो होते हैं काफी इलोंगेट हो जाते हैं, काफी बड़े हो जाते हैं, और जब ये इनकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये बॉन्ड हो जाते हैं वीक। और जब जॉन टेलर की वजह से ये इलोंगेशन की वजह से ये वीक हो गए तो आराम से फिर इनको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है यहाँ से, ओके। इसलिए रेट ऑफ एक्सचेंज कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन में और क्रोमियम के 2 पॉजिटिव आयन में बहुत ज्यादा होता है, बेस्ड ऑन द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब यहां पे अगर आप दूसरे कंसेप्ट लगाएंगे तो फिर फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक दो आइडिया मैं आपको देता हूं जो आपके शायद कभी काम आ सकते हैं। देखिए दो कंसेप्ट हैं, एक तो आपका होता है CFAE, दिस इज क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। इफ यू हैव नॉट सीन दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। सी इफ क्रिस्टल फील्ड फॉर द पर्टिकुलर, सी इफ यू हैव द टू कॉम्प्लेक्सेस एंड यू आर कंपेयरिंग देयर रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज, तो आपको मान लीजिए अगर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, अगर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन की एनर्जी पॉजिटिव दे रखी है, तो आपका जो भी मेटल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर्ट होगा। इनर्ट होगा तो वाटर एक्सचेंज का रेट क्या हो जाएगा, स्लो वाटर एक्सचेंज रेट हो जाएगा, इतना याद रखेंगे। लेकिन अगर ये क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्सेस आपके लेबाइल होते हैं, और अगर लेबाइल होंगे तो इसमें वाटर एक्सचेंज का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। एक क्राइटेरिया तो मेरे ये समझ में आता है, यहां से आप देख सकते हैं। बट अगेन इस केस में भी आप देखेंगे दो मेटल्स ऐसी हैं जिनका जैसे वेनिडियम है या आपका निकिल है, इनकी एग्जैक्टली सेम वैल्यू शायद आती है उसकी एक्टिव क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की, राइट। लेकिन फिर भी ये थोड़ा आगे पीछे चलते हैं, तो ट्रेंड हालांकि सॉलिड नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो, अगर ये पॉजिटिव है तो इनर्ट होगा और इनर्ट में स्लो है, और अगर ये नेगेटिव है तो लेबाइल होगा तो फास्ट होगा। अब कौन ज्यादा इनर्ट है उसके लिए देख लेंगे, जिसमें ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस CFAE, राइट, तो इसके लिए डेटा फिर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड होगा, चाहे नेट का क्वेश्चन है चाहे गेट का क्वेश्चन हो, ये आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये कैलकुलेट करना आसान नहीं है। क्योंकि इसके लिए सी व्हाट इज दिस CFAE, ये जो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्चुअली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड द 5 कोऑर्डिनेटेड स्पीशीज, जो इंटरमीडिएट बनता है। तो इंटरमीडिएट और आपके ऑक्टाहेड्रल के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ये कहला सकता है। तो 5 का तो आप कैलकुलेट कर नहीं, सॉरी 5 कोऑर्डिनेट का आपका बीच का डिफरेंस होता है, तो 5 वाला आप कैलकुलेट तो कर सकते हो नहीं, ओके। मैंने क्या बताया कि डिफरेंस ऑक्टाहेड्रल और इसके बीच का है आपका, दैट इज CFAE। तो इस पे अगर इस पे बेस अगर सॉल्व करना है तो ये आपको डेटा एग्जाम में दिया होगा, ओके। एक तो ये थोड़ा यूजफुल आपके लिए हो सकता है। तो कौन ज्यादा इनर्ट है, तो जिसके लिए ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होगी वो ज्यादा इनर्ट होगा, जिसके लिए कम पॉजिटिव है वो कम आपका इनर्ट होगा। ठीक उसी तरीके से इफ यू कैन चेक फॉर द लेबिलिटी, तो जिसके लिए आपका देखिए नेगेटिव वैल्यूज में लेवाइल होता है, जिसके लिए जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी वो उतना ज्यादा लेवाइल होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। और जिसके लिए वैल्यू कम होगी, मान लीजिए बहुत तीन कॉम्प्लेक्सेस की नेगेटिव में ही दे दी वैल्यू, तब आपको इनके मैग्नीट्यूड देखने पड़ेंगे, ओके। एक तो ये फैक्टर काम कर सकता है, और दूसरा एक आप और चीज समझ सकते हैं, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बेस पे भी इसको कई बार एक्सप्लेन किया जा सकता है, इफ यू हैव डेटा फॉर दिस वन। बट अगेन इट इज नॉट वेरी क्लियर कट, बट एटलीस्ट यू मे हैव द सम हेल्प फॉर दिस वन। देखिए अगर CFSE की वैल्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो CFSE ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल है, और अगर कॉम्प्लेक्स अगर स्टेबल है तो स्लो रिएक्शन करेगा। ये स्लो रिएक्शन करने का मतलब वाटर फिर स्लोली जाएगा।
लेकिन अगर CFSE का वैल्यू कम है, इफ यू आर कंपेयरिंग द टू कॉम्प्लेक्सेस, और एक का CFSE कम है, तो कम वाले का CFSE का मतलब कॉम्प्लेक्स आपका कम स्टेबल है, कम स्टेबल है तो फिर वो रिएक्शन रेट फास्ट करेगा। तो ये दो चीज आपको हेल्प कर सकती है, लेकिन अगेन दे आर नॉट वेरी क्लियर कट एक्चुअली। और ये जो सीरीज यहाँ पे बनाई गई है, ये CFSE और CFAE के बेस पे ही बनाने की कोशिश करी गई है, ओके। बट अल्टीमेटली देयर इज नो क्लियर कट रीजन, देयर इज नो क्लियर कट ट्रेंड एक्चुअली। तो कुछ ना कुछ तो फॉलो करता है, बट क्लियर कट नहीं है। तो बस आप ये दो याद कर लीजिए। अगर आपको ये सीरीज किसी तरीके से याद हो गई, तो फिर आप चाहे निमोनिक बना लीजिए इसके लिए कोई सा, ओके। तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज आई थिंक सफिशिएंट अबाउट योर वाटर एक्सचेंज रिएक्शन. And now we'll see the few problems based on your see which actually have been asked in the previous year CSIR net examination. So how we can solve those things. Okay, देखिए ये this is the question. CSIR net this ये अभी जो आपका दो स्टेट्स में रह गया था नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे 27 दिसंबर 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया है. एंड यू कैन सी अगेन द वाटर एक्सचेंज रिएक्शन इज हैपनिंग हियर. And you have given the metal copper, manganese, vanadium and copper. The correct order of the rate of water exchange. तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व कर रहा होता तो मैं इसको करने में एक सेकंड भी नहीं लगाता, क्योंकि मुझे पता है कि कॉपर में सबसे ज्यादा जो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन स्ट्रांग होता है. दैट मीन इट विल बी हाईली रिएक्टिव अंडर दिस कंडीशन. दैट मीन इट विल वेरी रेडिली अंडरगो द वाटर एक्सचेंज रिएक्शन. तो मैं देखता कॉपर किसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा. तो पहले ही ऑप्शन में आपको देखिए कि कॉपर जो है सबसे ज्यादा दिया है, तो मैं आंख बंद करके इसको टिक कर देता. ओके, दिस इज फाइन, क्योंकि इससे ज्यादा कोई होता नहीं है. एंड दिस इज द ट्रिक फॉर यू ऑल्सो व्हेनेवर यू आर एक्चुअली सीइंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंड यू हैव गिवन दीज ऑप्शन. देखिए अगर 3-4 में कॉपर दिया होता देन यू हैव टू अप्लाई द लॉजिक, लेकिन इसमें तो एक ही में दिया है, तो मेरा ऑप्शन में इसी आंख बंद करके ठीक हो जाता है. ओके, नाउ अगर आपको वो सीरीज याद है तो आपको पता है, देखिए वेनेडियम सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक. उसके बाद मैग्नीज सबसे कम रिएक्टिव होता है. अब यहां पे एक कंफ्यूजन जो आप लोग को हो सकता है, सी इफ यू सी दिस वन, क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज मोर रिएक्टिव. तो जल्दीबाजी में गलती क्या हो सकती है कि कॉपर के बाद आप क्रोमियम ढूंढने लगे. हालांकि कॉपर के बाद क्रोमियम तो मिलेगा नहीं, लेकिन यहां फोकस करिए, देखिए क्रोमियम 3 पॉजिटिव है. ओके, एंड व्हेन दिस क्रोमियम इज इन 3 पॉजिटिव स्टेट, दैट मीन हाई चार्ज ऑन दिस क्रोमियम, इट विल अट्रैक्ट द वाटर मोर स्ट्रांगली. और ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होगा, यहां से पानी का निकलना बहुत मुश्किल है, इसलिए लीस्ट रिएक्टिव होगा. इट इज नॉट 2 पॉजिटिव, इट इज 3 पॉजिटिव. बाकी देखिए इसी पे बेस्ड है आपका. फिर ये मैग्नीज, देखिए वेनेडियम तो आपका सबसे कम रिएक्टिव होता है. देन यू कैन पुट दिस वेनेडियम हियर. ओके, इसके बाद इफ यू ट्रेवल लेफ्ट देन इट विल यू विल हैव दिस. ओके, आई मीन राइट. और कॉपर देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पर आ गया. सो यू आर कंपेयरिंग द बाई पॉजिटिव एंड द ट्राई पॉजिटिव स्पीशीज. ओके, अगर क्रोमियम 2 पॉजिटिव होता तब ये जंप करके इधर आ जाता. तो आप ये भी याद रखेंगे. सो whenever you are actually solving the problem for the water exchange, you have to consider the charge over there. जहां पे चार्ज बहुत ज्यादा है वहां पर आपका वाटर एक्सचेंज काफी स्लो होगा और रेट ऑफ रिएक्शन काफी कम होगा. तो ये तो बहुत इजी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते और बस सीधे एकदम से इसको सॉल्व किया जा सकता है. एंड नथिंग, सी नो डेटा इज गिवन हियर, सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर नॉलेज ओनली. ओके, सो नाउ देन यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. CSIR नेट जून 2017 का ये क्वेश्चन है. The relative rates of the water exchange for the hydrated complex of nickel 2 positive, vanadium 2 positive, and again you can see guys this is chromium 3 positive. तो chromium 3 positive सबसे कम रिएक्टिव है आपका. अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया. तो आप देखिए सभी में क्रोमियम सबसे आपका कम रिएक्टिव है, तो कोई भी आंसर हो सकता है. तो क्रोमियम के बेस पे तो सॉल्व होने वाला नहीं है. नाउ यू कैन चेक ऑफ दीज टू. तो आपको पता है वेनेडियम जो है वो आपका सबसे कम रिएक्टिव होता है और आपका निकल उससे ज्यादा रिएक्टिव होता है. ये आप देखिए सीरीज अगर आपको याद है ये वाली, द निकल इज मोर रिएक्टिव देन द वेनेडियम. तो निकल वेनेडियम. ओके, और सबसे कम Cr3 पॉजिटिव, और 3 ही दिए हैं आपको. तो आप देखें मेटल ए निकल है आपकी, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. देन वी देन सो इसमें भी ऑप्शन 1 सीधे सीधे नजर आता है. ओके, सो यू कैन सी अगर आपको जरा सा वो कंसेप्ट याद है तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट अगेन मुझे लगता है कि इस टॉपिक से
क्वेश्चंस कैसे भी घुमाए जा सकते हैं. तो you have to be very very careful while solving the problem. You have to apply all the concept actually which you have learned for the stability of the coordination complexes, your crystal field stabilization energy, and your CFA. All these concepts you have to be very sure about all these. Okay. So guys, you can see this is my next problem, which I have taken from the June 2018 examination. Okay, so this question is, see, this particular question is again quite complicated, not very easy to solve, but again some trick can help you. Okay, so first you can see here, chromium 2 positive is easier to oxidize than vanadium 2 positive in the gas phase. Okay, तो यहाँ से आप एकदम अंदाज लगा सकते हैं. See, if you draw the crystal field splitting and you fill the electron in these chromium and the vanadium 2, then you will find the vanadium 2 positive is the 3d3 system. And since water, see, guys, you will remember one thing: whenever you are actually doing your water exchange reaction, then you consider your complex as the weak complexes, weak field complexes. Why? Because you can see here, this is the hydrated complex and water is a weak field ligand. So whenever you are doing the question based on the say your water exchange reaction, so you will consider that complex as a high spin complex. Okay, and based on the, see, if you have given the data and if you want to calculate CFSE also, then you will consider high spin, not your low spin. This should be remembered. Okay, so I see in that case I am considering that this chromium as your high spin. So chromium is D4 system. Okay, so you will have 4 electrons just like that, and vanadium 2 positive is a D3 system in that case. So पहली बार में देखने में आपको लगता हो कि chromium is easier to oxidize than vanadium, तो आप कहेंगे हाँ आराम से हो जाएगा chromium oxidize, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ से 3D3 का ये अटेंड कर लेगा. ठीक है, जबकि इसमें आपका ये स्टेबल है तो ये नहीं करेगा, तो आप इसको एकदम रफली टिक कर देंगे, राइट, जस्ट लाइक दैट विच आई हैव डन हियर. बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. Why it is not the correct answer? Because you see, it is asking the question in the gas phase. Okay, so what you can think about, in the gas phase you will have the chromium alone. Okay, and it is somewhat like that your ionization it is related to the ionization potential. And you know, when the atom or ion in the gaseous state, that means you are removing an electron, you are supplying the energy for this one, that means the ionization potential would be very very high. So in that case the ionization potential would be very very high, so it would not be easy to remove the electron from here. तो गैस फेज में तो ये नहीं होगा, दिस विल नॉट होल्ड. अगर आप ये, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है. ओके, अगर ये आपका एक्वस में दिया होता देन देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ देयर कम्स द सेकंड पॉइंट. ओके, क्रोमियम इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन वेनेडियम 2 पॉजिटिव. ओके, देखिए दूसरे ऑप्शन में अब इसने एक्वस कह दिया. नाउ इट्स क्वाइट इजी. अगर एक्वस है तो देखिए इसमें वाटर भी होगा सब तरफ. ओके, वाटर के अलावा क्रोमियम भी होगा. देन इजीली योर क्रोमियम कैन, व्हाट इट कैन डू, इट कैन डोनेट इस इलेक्ट्रॉन पेयर टू द वाटर सिस्टम और सम अदर सिस्टम जो आपके एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ओके, एंड यू नो, इन द रिडॉक्स रिएक्शन व्हेन द स्पीशीज अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन, इट विल एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट. तो एक्वस में आसानी से आपका ये जो है ऑक्सीडाइज होगा, तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट की काम करेगा. सिंस वेनेडियम 2 पॉजिटिव इज एक्चुअली हैविंग 3 पॉजिटिव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज नॉट इजियर फॉर दिस वेनेडियम 2 पॉजिटिव टू ऑक्सीडाइज इन द एक्वस मीडियम. तो ये उतना ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा. Okay, so this question is very common. You have studied in your general inorganic chemistry also. It is everywhere. Okay, so second point, I think it is the correct one. And third one, the rate of water exchange for chromium 2 positive is much faster than for vanadium 2 positive. बिल्कुल होगा. मैंने आपको बताया Cu2 positive, it's a D4 system, and D4 system undergoes strong John Taylor distortion. Bond elongation would अगर, तो ये तेज होगा. So this is also true. So option B and option C is correct. So A or B, this is not correct. A and C, this is not correct. B and C, this is correct. So option C is the correct answer. Okay, not actually D. Okay, तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. और इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आए तो आप इनको जरूर फोकस करें. तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट इन योर water exchange reaction. And remember, water exchange reaction is actually your the reverse of your equation reaction. Equation में अलग होता है, यहाँ पे ये reverse चलता है. So these things you have to keep in mind to solve the problems. Now guys, my last topic in the reaction mechanism is the Enation reaction. Okay, Enation reaction. Okay, so if you think about the Enation reaction, you can generalize that this reaction in that manner. Say this is metal, this is H2O 6 times. Okay,
and then you are having the N positive over there, and then you can have your X negative. This is your nucleophile, okay, which will substitute actually, right? And then you will have your F, then you have to have H2O5 and X, and of course you have replaced one neutral ligand with the anionic ligand, so you have to put N minus 1 over there, okay. Okay, finally it will give you the positive one. So this is the general reaction. तो एनेशन रिएक्शन क्या होता है? जहां पे एक एनायन वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो ये एनेशन रिएक्शन कहलाता है. ओके, सो सी दिस यू हैव टू रिमेंबर एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ द एन पॉजिटिव एंड एन माइनस वन पॉजिटिव. तो ये कैसे हो रहा है, चलिए इसको भी देख लेते हैं आप लोग. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर वन. से आई एम हैविंग माई निकल and say I am having my 6 of water molecule over there. I am putting 2 positive over here and I am reacting this with the acetate ion just like that, okay. And of course some rate constant would be there in both the cases, and then you will have your nickel H2O 5 times and then your acetate ion, okay, you can write in that manner, okay. And then you have water molecule over there, and definitely say n minus 1, that means 2 minus 1, it will give you the 1. So why I am doing this one? In that case you can see the nickel is in the 2 positive oxidation state, okay. You can calculate very easily. X plus 6 into 0, because water is neutral, this will give you equals to 2, because 2 positive charge is there, it will give you 2. And in that case you can see nickel is X, 5 into 0, there is no problem, minus 1 because acetate is minus 1, and plus 1, so X equals to 2. So in order to satisfy the oxidation state, you have to decrease that N value by the Y1 when you are replacing anion with the neutral ligand. This you have to keep in mind, okay. Okay guys, there is a very common question which I have given in the various textbooks, especially in the Ajay Kumar and Hui. In the Hui, this reaction is also there. In that case, say for example you are having that particular complex and you are reacting this with the 3 different kinds of the nucleophiles. And remember one thing, this is negatively charged species, क्योंकि ये negative है तो ये बहुत अच्छा donor है when compared to the neutral species, इसीलिए इसको substitute भी कर पा रहा है, otherwise ये नहीं कर पाता. Fine. So first say you are replacing with this CH3 COO negative, okay, and say this is your K1. Second time you are taking your NCS thiocyanate, and in that case say this K2, and third you are doing this with this one, say this is K3. तो हर बार आप क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं जो आपका न्यूक्लियोफाइल है. तो इनमें से जो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा वो फास्टर रिएक्शन रेट देगा. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो अगर इनके लिए रेट की वैल्यू ऑब्जर्व भी की जाती है विच इज गिवन इन द अजय कुमार बुक. So this for this one, this value is actually 30 into 10 is the power 5, okay, second inverse. And then there comes your thiocyanate value, okay. For thiocyanate this value is little low, that is 6 into, not 5 actually, this is 3 guys, this is 10 is the power 3, very sorry for this one, okay. And this is 6 into 10 is the power 3 second inverse. और फ्लोराइड के केस में अगर आप देखते हैं देन दिस वैल्यू इज समवेयर अराउंड 8 into 10 is the power 3 सेकेंड इनवर्स, ओके. तो इस केस में आपको क्या नजर आ रहा है कि फास्टेस्ट रिएक्शन रेट एसीटेट के केस में है, दैट इज K1, फॉलोड बाय योर फ्लोराइड, दैट इज फॉर फ्लोराइड इट इज K3, आई कैन राइट K3, एंड लीस्ट रिएक्शन रेट फॉर द K2, ऐसे फॉलो कर रहा है, ओके. एंड यू नो दिस इज फॉर एसीटेट, आई कैन राइट एसीटेट, एंड दिस K3 is your F negative and thiocyanide is your K2 NCS, okay. This you have to think. So guys, to solve such kind of the problem you have to think out of the box. इतना आसान नहीं है कि एकदम से सब कुछ हो जाएगा. तो इसके लिए क्या लॉजिक दिया जा सकता है, इसके लिए मैं बहुत सिंपल सा आंसर आपको दे सकता हूं. Why the rate is slowest for the thiocyanate case? Because it is having the 3 resonance structure. 3 resonance structure, इसके पास 3 resonance structure है, and you can draw very conveniently those 3 resonance structure. For example, say I am having N, okay, triple bond C, single bond S, और नेगेटिव मैं इसको दे रहा हूं तो यहाँ पे लगा देते हैं. फाइन, एक लोन पेयर इसके ऊपर रहेगा. तो अगले में आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट करा दीजिए, इसको इधर शिफ्ट करा दीजिए. देन यू विल हैव नेक्स्ट स्पीशीज in which your nitrogen would have the 2 lone pair and this would become double carbon double bond sulfur now, okay.
एंड दैट सल्फर नाउ विल हैव ओनली 2 लोन पेयर। ओके, तो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आ गया तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ 0 फॉर्मल चार्ज है नाइट्रोजन का, यहाँ -1 हो जाएगा। ओके, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट और बना सकते हैं। नेक्स्ट कैसे भी, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, देन यू विल हैव योर अनदर स्ट्रक्चर वेयर योर नाइट्रोजन इज हैविंग एक्स्ट्रा 2 लोन पेयर, दैट मीन 2 नेगेटिव, यहाँ पे और ज्यादा फॉर्मल चार्ज इसका बढ़ जाएगा। एंड देन दिस वुड बी योर सिंगल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सल्फर एंड सल्फर विद ओनली 1 लोन पेयर, नाउ इट विल हैव द पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली जो है, सल्फर उसका दूसरा मेंबर है, इसको 2 लोन पेयर रखने की आदत है, 2 से कम होंगे तो पॉजिटिव लेगा। नाइट्रोजन को 1 ही लोन पेयर रखने की आदत है, उससे ज्यादा लेगा तो नेगेटिव आते रहेंगे। तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपके इसके लिए बन गए। सो मोर द नंबर ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दैट मीन मोर इज द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन इतना डीलोकलाइज होगा तो एक जगह रहेगा नहीं, तो डोनेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो दिस कैन नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर वेरी इजीली ड्यू टू द 3 डिफरेंट रेजोनेंट काइंड्स ऑफ द structures, so it reacts very slowly in this case. That's why the K2 is very slow. And then there comes your C acetate, and for this acetate you are having only 2 structures, C double bond O and O negative. Okay, and if you draw the resonance structure, ठीक है, ये सब आपको आता ही है कैसे बनाते हैं, CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, इसके लिए कितने, सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, since if the number of resonance structure is the basis, then fluoride is having no resonance structure, then why it is not reacting fastest, इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए। the obvious reason is that F negative is very small in size, पहली बात, and दूसरी चीज it is very highly electronegative, तो ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और साइज छोटा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन में बड़ा रिलेक्टेंट होता है, इट डू नॉट वांट टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा तो ऑफ कोर्स इसका रेट जो है आपका एसीटेट से कम होगा। अब ऑक्सीजन के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर भले ही 2 है, लेकिन ऑक्सीजन उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है व्हेन कंपेयर्ड टू द your F negative. So this is how you can give the reasons for this one, and whenever you solve the problem based on this, you have to think out of the box also. तो हमेशा एक लॉजिक से ही चलेंगे तो CSIR नट और गेट की प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व नहीं होंगी, आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ेगा। So guys, this is all about the reaction mechanism part. I have completed the entire reaction mechanism in the coordination compounds. Okay, so if you think I have missed something, then you can comment in the comment section. I'll try to make the video on that particular topic also. Okay, or you have some problem, then you can ask those problem also. But remember one thing, problem पूछने से better है कि आप problem में खुद लॉजिक अप्लाई करें और खुद सॉल्व करें उसको, तब ही आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से सीख भी पाएंगे। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दे दी जाएंगी तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ओके, so that's it for today guys. In the next class I'll meet you with some other topic in the coordination compounds, and there may be the very important topic for you, like say your charge transfer spectra. Okay, उस बारे में हम इसमें बात करेंगे। Okay guys, so अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और चीजें समझ में आ रही हैं, प्लीज सब्सक्राइब द टेट्राहेड्रन केमिस्ट्री क्लासेस, लाइक द वीडियो, ओके, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नए नए जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग आपको मिलते रहेगा गाइस। ओके, थैंक यू वेरी मच।